Hello everyone, welcome back to my channel. I am Garima Singh and today we'll start with the very first chapter of our history, which is the rise of nationalism in Europe. Today we'll start with the very first chapter of history, which is all about rise of nationalism in Europe. आपको टाइटल से क्या समझ में आ रहा है? हम किस रीजन ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं? यूरोपियन रीजन के बारे में, राइट? नाउ another thing from the title what you can understand is we are talking about the nationalism. Guys, when I say nationalism, आप nationalism के concept से क्या समझते हैं? Nation क्या है? It is the concept of people coming together and staying together like that of our nation. India के अंदर there are different religion people, different category of people, different race, different culture. People have come together to exist together as a whole, right? As a nation. So nation is a concept, right? और जब किसी वर्ड के पीछे ISM लग जाता है, ISM मतलब वो एक आइडियोलॉजी बन जाती है, वो एक आइडिया बन जाता है, तो राइट। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये नेशनलिज्म, ये वाली जो आइडियोलॉजी है, ये यूरोप में कैसे उभरी। ओके, how did the rise of nationalism happened in Europe and what all changes does it led to in that region. Okay, so before starting this video, let me give you an introduction so that you have an idea what all are we going to study in this chapter. So firstly we'll talk about the nationalism in Europe. यूरोप के भी कुछ पार्ट्स में हम बात करेंगे like that of France, Germany, Italy and Britain. So in regions में हम बात करेंगे how did the nationalism came in this region of Europe. Okay, after that we'll also understand how did the emergence of nation states happen by replacing multinational dynastic empire in Europe. मतलब ये बोलना चाह रहे हैं इस लाइन में, हम ये देखेंगे as a nation ये सब कंट्री एज ए नेशन कैसे निकल के आई, कैसे एक नेशन बने ये लोग, एंड जो पुराना रूल था, जो डायनेस्टिक रूलर्स थे, राजा थे जो वहां रूल करते थे, उन डायनेस्टिक रूल को कैसे फिनिश किया एंड एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स कैसे राइज हुए. ओके, एंड देन विल टॉक अबाउट हाउ थिंग्स इवॉल्व. मतलब इवॉल्व क्या होता है? तब आप टाइम के साथ चीजें चेंज होंगी, राइट? तो कैसे एवोल्यूशन होगा सब चीजों का. From being a dynastic empire, these places will turn into a nation state, right? So what were the challenges that they faced? And also very important, the painting of Frederick Serres. Okay, इनकी पेंटिंग किस चीज के बारे में बात करती है? It talked about the dream of worldwide democratic and social republic. ये पेंटिंग कई बार क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि पेंटिंग दी होती है और आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि what is the appropriate title for this painting, right? तो पेंटिंग को आप देख लेना which is given in your book. तो इस पेंटिंग के बारे में हम बात करेंगे जो फ्रेडरिक ने बनाई थी, और वो पेंटिंग क्या डिपिक्ट करती है? इट सेज अबाउट द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड, कि पूरे विश्व में एक सपना है, दिखाया है इस पेंटिंग के दौरान कि जैसे कि अगर डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक गवर्नमेंट आ जाएगी, द इमेज ऑफ द वर्ल्ड विल चेंज. ओके, so we'll talk about all of this in this chapter. So this is the painting I was talking about, the painting by Frederick Serres. Okay, it was made in 1848. Okay, so this is the image from which our chapter starts. So mark this image because this is a very important image. क्या दर्शाती है ये पिक्चर हमें? That people from different region, like people of Europe and also from the region of America are coming together, no matter it is man or women, they all are coming, the people of all age are coming together, and this statue marks as the Statue of Liberty. So we'll study how about the French Revolution also, and this liberty as a word, as a meaning, as an ideology will play a really significant role in the French Revolution, right? So now discussing more about the painting so that you have an idea what we have discussed by looking at the image. Okay, so painting is about the dream of the worldwide democratic and social republic. Who has made it? Frederick Serres, and in 1848, right? It also shows that different men and women are coming together. सब लोग साथ आ रहे हैं. People of all age and all class are present. Okay, सब तरह के लोग आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं. And also we can see a Statue of Liberty.
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो व्हाइट कलर की जो इमेज खड़ी है सामने, इमेज में एक छोटा सा व्हाइट कलर की जो फिगर दी है, दैट इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। उसके एक हाथ में तो है टॉर्च, द टॉर्च सिग्निफाइज द एनलाइटनमेंट, मतलब लोगों को सोच बूझ हो गई है, समझ में आ रहा है। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड शी इज होल्डिंग द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन क्या है? जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है इंडिया में हमारे, राइट? तो ऐसे चार्टर ऑफ राइट्स जो कि हमने कहाँ से बोरो की हुई है? फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन में से कुछ चीजें लाइक लिबर्टी, देन इक्वालिटी, द डेमोक्रेटिक राइट्स, ये हम सब ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से बोरो किया है, फ्रेंच से बोरो किया है, राइट? सो उस चीज को सिग्निफाई करती है, उस चीज को दर्शाती है। Also, we can see that symbols like absolutism image are shattered in the ground. It means जो absolutism वाले जो images हैं जो फाड़ के ground पे टुकड़े टुकड़े करके बिखराए हुए हैं, right? So when we talk about absolutist government कौन है? जो सिर्फ अपने हिसाब से चलेगी, नो मैटर वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं, कोई उनकी पावर को कंट्रोल करने के लिए कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं चलेगा उनके ऊपर, राइट? सो एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट क्या है? इट इज अ गवर्नमेंट और अ सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेन ऑन द पावर एक्सरसाइज। उनके ऊपर कोई वो नहीं है, कोई उनकी पावर के ऊपर चेक नहीं रख रहा है, तो वो अपने हिसाब से जो मन में आता है सरकार करती रहती है। Therefore, when we talk about the absolutist government in हिस्ट्री में अगर हम बात करें एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट की, तो कौन सी गवर्नमेंट होती है? लाइक मोनार्की, जहां सिर्फ राजा की ही चलती है। सेंट्रलाइज्ड मतलब एक सरकार बना दी है सेंटर पे, उसके अकॉर्डिंगली सब चीजें चलेंगी। या मिलिट्री की रूल चलता है, या ऐसी सरकार है, ऐसे सिस्टम ऑफ रूल है जो बहुत ही रिप्रेसिव है, लोगों को दबा के रखते हैं। तो इन टाइप ऑफ गवर्नमेंट को या सिस्टम ऑफ रूल को हमने हिस्ट्री में नेम दिया है एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब उसी की चलेगी और नो मैटर वहां लोग क्या कह रहे हैं किसी के नहीं सुना जाएगा, राइट? देन फ्रेडरिक ने अपनी पेंटिंग में हमें बताया है अबाउट द यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन क्या है बच्चों? यूटोपियन मीन्स इट इज दैट idea of society which is so ideal that it is unlikely to actually exist। मतलब इतनी अच्छी सोसाइटी और इतनी परफेक्ट सोसाइटी की ऐसी सोसाइटी एक्चुअली में एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती। ओके, सो फ्रेडरिक की पेंटिंग किस चीज की बात करती है? यूटोपियन विजन की। एंड यूटोपियन विजन क्या क्या होता है? इट इज अ विजन फॉर द परफेक्ट एंड द आइडियल, बिल्कुल इतनी 110% परफेक्ट सोसाइटी जिसमें कोई कमियां नहीं है। एंड इज इट पॉसिबल टू हैव सच अ सोसाइटी जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो? ऑब्वियसली नो। देयरफॉर ये लाइन लिखी है दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, कि मुश्किल से ही एग्जिस्ट करती होंगी ऐसी सोसाइटी। तो बेसिकली द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ये आइडिया जो है, ये आइडियोलॉजी है, ये कब इमर्ज हुई? इन यूरोपियन रीजन इन द 19th century। ओके, and we will see that this will lead to a change in the political setup and will lead to the formation of different nation in the region। okay, so in our class 9th हमने पढ़ा था क्या कुछ हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, राइट? क्या कुछ इवेंट्स हुए थे, तो हमने सब देखा था इन 9th class। we have studied already। if you do not remember anything regarding this, you can watch my 9th class video of French Revolution so that you can retain what you have studied in class 9th। So today we'll talk about the French Revolution and the idea of nation। French Revolution as a concept, as a revolution in history इतना important क्यों है? क्यों इसको इतना importance दी जाती है हिस्ट्री में? It is because this was the first time the expression of nationalism was clearly expressed in the region of Europe, और यहां से इट विल वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाएगा, राइट? तो पूरी जगह विश्व में स्प्रेड होगा यहां से आइडिया ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, देयरफॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। तो हमने 9th क्लास में तो पढ़ चुके हैं कैसे क्या हुआ था। अब हम बात करेंगे कि जब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इन 1789 फाइनली आया, तो उससे एज ए नेशन का आइडिया कैसे निकलेगा और नेशन के साथ और क्या चीजें आएंगी। ओके, जब हम किसी नेशन की बात करते हैं, नेशन मीन्स इट इज अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब जैसे हम हैं,
वी पीपल लिव इन द नेशन कॉल्ड इंडिया. ओके, सो कलेक्टिव आइडेंटिटी अगर मैं एड्रेस करना चाहूँ सारे लोगों को जो यहाँ रहना चाहते रह रहे हैं इंडिया में. ओके, सो आई विल बी कॉलिंग देम एज इंडियंस. ओके, इंडियंस क्यों? बिकॉज दिस इज द कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ आवर नेशन. ओके, सो नेशन का मतलब क्या होता है? एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जो लोगों को एक जैसा होने का विश्वास दिलवाती है, एक साथ रहने का विश्वास दिलाती है, राइट? So let's see what were the steps taken by the people there during the French Revolution to bring the sense of collective identity so that a nation could be formed, right? So the ideas like la patrie and la citoyenne was introduced. La patrie means जैसे हमारे हम क्या बोलते हैं, धरती माँ, मदरहुड का कॉन्सेप्ट है हमारे नेशन में. सिमिलरली तो हम फ्रांस की बात करते हैं, दे हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ला पात्रे, इट मींस द फादरलैंड. ओके, फादरलैंड क्या उनकी? फ्रांस. ओके, एंड ला सिटियन मीनिंग का है सिटीजनशिप, वहां के नागरिक कौन रहेंगे. सो दे इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ ला पात्रे एंड द ला सिटियन. ओके, ऑल्सो दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फ्लैग. जैसे हमारे इंडिया का फ्लैग क्या है? ट्राई कलर है. सिमिलरली उन्होंने भी एक न्यू फ्लैग इंट्रोड्यूस किया सो दैट द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कुड बी पुट इन प्रैक्टिकल एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन कैन बी गिवन द शेप, राइट? सो गाइज, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप एक बात ध्यान रखना, हिस्ट्री ऑल द वे सेम ही है, हर जगह की सेम जगह सेम इवेंट्स ही हुए हैं. जहां इंडिपेंडेंस नहीं थी उन्होंने इंडिपेंडेंस लेंगे, तो ऑल द वे सेम ही है. इट्स जस्ट द नेम्स आर डिफरेंट. ओके, थोड़े से नेम में चेंज हो जाएगा, अदरवाइज ऑल द वे हिस्ट्री सब जगह की ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही रहती है हमारी, राइट? देन उसके अलावा उन्होंने क्या किया था उस टाइम पे? दे फॉर्म अ नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली क्यों? ताकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन और सोशलिस्ट आइडिया को वो शेप दे सके. ओके, न्यू हाइम्स वर कंपोज, ओथ्स वर टेकन. हाइम्स मतलब सॉन्ग्स वगैरह कंपोज किए गए, नेशनल सॉन्ग्स एंड स्टफ. ओथ्स ली गई, राइट? कस्में खाई गई कि टू वी विल बी रूलिंग द गवर्नमेंट इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, ताकि किसी की राइट्स ना हर्ट हो. Also, they introduced a controlled administrative system. Controlled मतलब planned. Okay, सरकार का रूल आया, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया. एंड ऑल्सो द इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड. जो इंटरनली वो कस्टम ड्यूटी चार्ज करते थे, टैक्स लगते थे, जिसके ऊपर पुराना कर्जा था, उन सबको भी उन्होंने एक बार के लिए अबॉलिश कर दिया. ओके, एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वॉज इंट्रोड्यूस्ड. एक यूनिफॉर्म सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि वेट और मेजरमेंट का, राइट? ऑल्सो ताकि सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस लोगों में ज़्यादा हो, लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा हो, नेशन का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा फ्लरिश करे, तो उन्होंने क्या किया? एक नेशन है, एक देश है, तो क्या होगा? उसकी लैंग्वेज भी सेम ही रखेंगे, राइट? तो उन्होंने रीजनल डायलेक्ट्स जो थे उनको बैन कर दिया, मना कर दिया, एबॉलिश कर दिया. उन्होंने बोला कि रीजनल डायलेक्ट्स जो है, अलग अलग जगह अलग अलग लैंग्वेज, वो नहीं रहेंगे. रादर उन्होंने एक लैंग्वेज पे ही फोकस किया, उसी को प्रमोट किया, विच इज फ्रेंच. ओके, तो हमने देखा अभी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वॉज स्प्रेडिंग फ्रॉम फ्रांस टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप. यूरोप में कौन सी जगह में की बात कर रहे हैं? अदर पार्ट्स लाइक होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड. तो यहाँ भी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वॉज स्प्रेडिंग. And at this time, it was the Napoleon Bonaparte who was ruling the French region, right? हमने तब 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था. हमने क्या किया था? फर्स्टली फ्रांस जो था वो मोनार्की के अंडर था, फिर मोनार्की जाती है, फिर और लीडर्स आते हैं, एंड फाइनली बीच में एक मिलिट्री डिक्टेटर भी आते हैं, हु वाज नेपोलियन बोनापार्टे, राइट? तो वो एक मिलिट्री डिक्टेटर थे. तब इनका रूल था इस टाइम पे, इस समय की बात हो रही है, तब नेपोलियन बोनापार्टे वाज रूलिंग. ओके, तो इस टाइम पे जो फ्रेंच आर्मी थी, द फ्रेंच आर्मी नाउ स्टार्टेड टू कैरी आउट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. इन्होंने बाहर जाके दूसरी जगह को कैप्चर करना शुरू किया, वॉर हुए, उन्होंने सारी जगह पे अपनी रूल एस्टेब्लिश कर लिया, राइट?
क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, उनको पता था भी कैसे मिलिट्री को यूटिलाइज करना और दूसरी रीजन को कैप्चर कर सकते हैं। इनके रूल के अंडर जो फ्रेंच आर्मीज थी वो अब आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को बाहर अब्रॉड भी लेके जा रही थी, ओके, इन डिफरेंट नेशन ऑफ यूरोप। Guys, I hope you remember your 9th class history, right? If you are not able to relate, I have made video on French Revolution also. If you want to go back and take a quick revision, you can watch those videos from the 9th class history playlist. And also, to make it very convenient and easy for you to find the link, I'll be linking the link of the video in my description box below, so you can check it out. So talking about the Napoleonic Code और द सिविल कोड ऑफ 1804, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, जो फ्रेंच की जो आर्मीज थी, इट वाज नाउ कैरिंग आउट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। अब्रॉड मीन्स बाहर लेके जा रही थी आइडिया को, राइट? तो अब यहाँ बात करेंगे हम एक सिविल कोड ऑफ 1804, या उसको हम क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, नेपोलियनिक कोड, ओके। So as we have seen that Napoleon Bonaparte, who was a military dictator, उन्होंने बाहर जाके दूसरे एम्पायर पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। Therefore, as a result, अब उनके पास he had a large empire, right? And also, क्योंकि इतनी बड़ी huge empire थी, he has also introduced many reforms. Okay, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उन्होंने और क्या किया? He had destroyed the concept of democracy. Democracy क्या होती है बच्चों? It is the rule of the people, for the people and by the people. वे लोग अपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अपने रूलर को इलेक्ट करेंगे, राइट? रिपब्लिकन हेड रहेगा उनका। तो उन्होंने नेपोलियन ने डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया था, लेकिन क्योंकि वो एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, उन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को और ज्यादा रैशनल और एफिशिएंट बनाया, ओके। मिलिट्री डिक्टेटर मतलब एब्सोल्यूटिस्ट का फॉर्म है ये गवर्नमेंट का। एक जन की चलेगी, एक इंसान की चलेगी, एक डिक्टेटर रहेगा, तानाशाही रहेगा, राइट? तो यहाँ उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी को तो खत्म कर दिया, लेकिन एक अच्छी बात भी थी, लाइक एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, इट ऑल्सो हैड टू साइड, कि उन्होंने डेमोक्रेसी खत्म कर दी लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को ज्यादा अच्छा, रैशनल और एफिशिएंट बनाया। ऑल्सो अच्छी बातें क्या थी? ही अबॉलिश्ड द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एंड एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। उन्होंने बोला ये जो बड़े ओल्ड एरिस्टोक्रेसी फैमिली में होते हैं पैदा, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं रहेगा किसी के पास ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। लेकिन क्या एस्टेब्लिश की उन्होंने? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है, नो मैटर व्हाट पोजीशन यू आर हैविंग इन दिस सोसाइटी, रिच और पुअर, जो भी है सब लोग इक्वल रहेंगे बिफोर द लॉ। Also, the feudal system, the serfdom and manorial dues were abolished. Feudal system क्या है? जैसे कि मैं किंग हूँ, तो मैं डिफरेंट रीजन के अंदर अपने किंगडम को डिवाइड कर देती हूँ और हर रीजन वाइज मैं फ्यूडल लॉर्ड्स को असाइन कर देती हूँ, भाई यहाँ के जितने टैक्स वगैरह हैं तुम कलेक्ट करके, और इन द एंड सब लोग डिफरेंट रीजन से ऐसे लाके टैक्स यहाँ मुझे सबमिट करोगे, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूडल सिस्टम। इस सिस्टम को अबॉलिश कर दिया नेपोलियन ने, ओके। सर्फडम क्या है? व्हेन पीपल आर वर्किंग एज सर्फ ऑन द लैंड, अपनी ही जमीन पे वर्कर्स की तरह, एज लेबर्स की तरह, एज सर्व्स, दे आर वर्किंग फॉर द बिग लैंडलॉर्ड्स, ओके। जमीन उनकी है लेकिन स्टिल दे आर वर्किंग फॉर देयर अदर पर्सन, राइट? ऑल्सो द मेमोरियल ड्यूज, जिसके ऊपर भी जो कर्जे थे वो सब उन्होंने अबॉलिश कर दिए नेपोलियन ने, ओके। नाउ द गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या है बच्चों? गिल्ड है टैक्सेशन फॉर्म, ओके। जो ऐसे कोई टैक्स वगैरह पे करना का जो था उस टाइम का सिस्टम, उसको हटा दिया गया। अब इसकी वजह से टैक्स वगैरह हट गया है, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हट गई है, देयरफॉर अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी विदाउट एनी इंटरफेरेंस, ओके। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अ यूनिफॉर्म लॉ एंड करेंसी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस, ताकि वहाँ एक एज ए नेशन, एज ए कलेक्टिव आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश किया जा सके,
एक यूनिफॉर्म एक जैसा कानून बनाया गया और एक ही करेंसी सिस्टम लाया गया। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के केस में अगर बोलो हमारी करेंसी क्या है, इट इज इंडियन रुपीज, राइट। सो सिमिलरली उन्होंने भी अपने नेशन के लिए करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। सो गाइज दिस इज फॉर द सिविल कोड ऑफ 1804 और द नेपोलियनिक कोड। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है किसी भी फॉर्म में। सो these are the points that you need to mention, or they can even ask what were the reforms that Napoleon has introduced or what was the civil code of 1804। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में आपको ये सब पॉइंट्स लिखने हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, सो अंडरस्टैंड इट, लर्न इट। ओके, टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच आर्मी, उस टाइम पे हमने पढ़ा ना अभी कि फ्रेंच जो आर्मीज थी उनको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी समझा जाता था। कि इनिशियली तब इन्होंने फ्रेंच आर्मीज अब्रॉड जाना शुरू हुई, उन्होंने रीजन्स को कैप्चर करना शुरू किया, उनको समझा जाता था कि दैट दे आर द साइन ऑफ द लिबर्टी हियर। भाई ये लोग आए हैं यहाँ हमें फ्रीडम दिलवाने के लिए। ओके, हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी समझा जाता था कि ये लोग आगे फ्रीडम दिलवाएंगे। लेकिन सून द कॉन्सेप्ट इन द माइंड ऑफ द पीपल चेंज्ड। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि जो एंथुजियाज्म जिस वो दिखाया था, जो जोश लोगों ने दिखाया था, तब ये लोग दूसरी दूसरी जगह जा रहे थे, रीजन्स को कैप्चर कर रहे थे। सून उनको समझ में आया दे आर नॉट हियर फॉर गिविंग अस फ्रीडम, रादर ये तो हमें अपने अंडर करने आए हैं, राइट। दे आर हियर टू मेक अस देयर कॉलोनी। तो ये एंथुजियाज्म हैज सून टर्न्ड इनटू द हॉस्टिलिटी। जो लोग पहले इनको वेलकम कर रहे थे और बड़ी खुशी खुशी इनकी एंट्री वहां देख रहे थे, सून लोग वहां इनके अब खिलाफ हो जाएंगे, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, इट डज नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। जितनी पॉलिटिकल फ्रीडम अभी हमने पढ़ा अंडर द सिविल कोड, तो जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट की, तो वो इतना कुछ अच्छा नहीं था। क्यों नहीं था? इट वॉज बिकॉज हियर दे हैव इंक्रीज द टैक्सेशन सिस्टम। टैक्स इंक्रीज हो गया, किसको पसंद आएगा? किसी को नहीं। बचेगा क्या उनके पास अपनी लाइवलीहुड में से? कुछ भी नहीं बचेगा। मेजर हिस्सा क्या है? टैक्सेशन में निकल जाता है। सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप क्या? जो भी अखबार में या किसी मैगजीन में कुछ भी प्रिंट होगा या किसी भी मीडिया या फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में कुछ भी चीज दिखाई जाएगी, बताई जाएगी, इट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। पहले गवर्नमेंट चेक करेगी कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो उनके खिलाफ हो रहा हो, तो उस चीज के ऊपर बैन लगा देंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल सेंसरशिप। ओके, एंड ऑल्सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज। लोगों को धक्के से आर्मी के अंदर भर्ती भी कर रहे थे। Okay, so these are the reasons why the administrative arrangement does not go hand in hand with the political setup of the nation. So guys, that's it for today's video. In today's video, we have seen how the rise of nationalism spread in Europe and different regions, and also about the French Revolution, and most importantly from this section, we have done the Civil Code or the Napoleonic Code. So guys, I am again repeating, do the civil code really well, as it is a very probable question from this part of our chapter. So thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you find this video helpful, then do not hesitate to press in the thumbs up icon, and also if you haven't subscribed to our channel, make sure you like, share and subscribe to our channel and make us grow each day and every day.